So आपका सवाल बिल्कुल सही है कि रैंडमाइजेशन के प्रोसेस से हमने इस चांस फैक्टर को बैलेंस कर दिया। तो जो एड ऑन थेरेपी है उसका इफेक्ट हम इसमें फिर मानते हैं। होप आई कुड एड्रेस इट वेल। Do well. This much I can tell you that today we are here to speak on the efficacy of NOC19. This particular drug, as you can see that how Shrishi Tattva has approached it, is that we've ensured that we bring across our PIs over here who are involved, and they're here and very happy to take on any particular questions. At Shrishi Tattva, what we wanted to ensure is that the medicine, when it is approved, we would bring across the sort of approval that what we have from the Ministry of Ayush. We are very happy, that through the ministry support, we do have this particular approval here today, and it stands on its own merit. And I'm very, very proud of this entire team who actually put this all together, especially during the second wave of COVID. It was all the more detrimental, and people lost a whole lot of their families and their loved ones. So here, in terms of NOC19, we've ensured that it's not only that the medicine that what we gave importance to, but how we also communicate it, and also the processes that what has been followed. So we leave no stone unturned to ensure that we take both regulatory and mandatory steps that are required to be fulfilled before we come here to this press conference. Thank you very much. What I invite all of you is that I would invite all of you to go and visit our website www.shrishitattva.com, and also more amount of information of NOC19 is also given across to all of you through your press kit, and also a couple of other products to really see that all of you use them. They're all daily use products that will really make a difference to your life, and also quality products made in India. I'm very, very proud. But thank you very much for coming here. It's been such a pleasure spending time with all of you. And the entire panel here, I thank each and every one of you. Very good afternoon to all of you. My name is Arvind Bhattacharya, the Managing Director of Shrishi Tattva. हाँ जी, तो पहली चीज़ है कि ये हमारा दूसरी मेडिसिन है जो अभी अप्रूवल मिला है। तो पहले वेव में श्रीशी तत्वा का कबसुरफुडिनीर का ये जो टैबलेट थी तो उसका अप्रूवल मिला था प्रोफिलैक्सिस के तौर पर। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है NOC19, ये हमने जब दूसरी वेव आई तो हमने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिसर्च किया था, और मैं बहुत गर्व से कहना चाहता हूँ कि ये शायद इंडस्ट्री से सबसे बड़ा क्लिनिकल ट्रायल के तौर पर किया गया कि इतने सारे पेशेंट्स क्या इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, और ये इसका एफिकेसी जो है आज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने उसको अप्रूवल दिया है कि एक सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पर माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 केसेस, और उनके लाइन में उनके लेटर में जो ऐसे लिखा है कि एज एन एड ऑन थेरेपी फॉर माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 केसेस। तो ये मैं बहुत गर्व से कहना चाहता हूँ कि ये जो मेडिसिन है सिर्फ आयुर्वेद की दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन एलोपैथी की तौर पर यदि देखा जाए कि ये सब क्लिनिकल ट्रायल्स एलोपैथी हॉस्पिटल्स में किया गया, और ये इसका एफिकेसी जो है हम दोनों साथ में लेकर हम चल रहे हैं। सो टुडे नाउ आई विल से इट इन इंग्लिश, टुडे इट्स एन एक्सट्रीमली proud moment not only for Shrishi Tattva but for the entire Ayurveda community and also for the health community at large, that this particular medicine NOC19 has been approved by the Ministry of Ayush as an add-on therapy for mild to moderate COVID-19 cases, as a supportive drug for COVID-19 cases. We've seen that NOC19 has definitely helped people as a prophylaxis, as something as a preventative, but we wanted to take on the next step and to ensure and prove its efficacy in terms of it being clinically established. That's why we brought the Apex institutes that we have here in India, including the All India Institute of Medical Sciences in Jodhpur, to ensure that we have a clinical trial that would really prove efficacious not only to the drug but also establish Ayurveda's efficacy in India and also across the world. Today, NOC19 stands as a testament that how Ayurveda as a system of medicine is extremely relevant even to date, and today we are very proud over here announcing the fact that NOC19 has its approval as a supportive drug for mild to moderate COVID-19 cases. And obviously COVID-19 being a viral infection, we've seen that NOC19 also has its role to play in as an antiviral as well, and other upper respiratory tract infections too. So thank you very much. तो आज मैं हमारे जो मेडिसिन NOC19 है मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि उसका एफिकेसी क्या है
और ये जो मैंने आपको बताया कि इट नॉट ओनली एक्ट्स एज अ प्रिवेंटेटिव, लेकिन अभी ये मंत्रालय से अभी अप्रूवल भी आया है कि इट्स अ सपोर्टिव ड्रग फॉर माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 एज एन एड ऑन थेरेपी फॉर माइल्ड टू मॉडरेट। तो इन टर्म्स ऑफ आपकी जो क्वेश्चन है कि ये लोग इससे कैसे हेल्प होंगे, कि अभी आप देखिए कि ये जो कोविड है इट इज़ अ वायरल, इट इज़ अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये पर्टिकुलर हर्ब जो है इट हेल्प्स दिस पर्टिकुलर सिम्टम, तो इट डेफिनेटली हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट टू प्ले। अभी आप देखेंगे कि स्टैनफोर्ड से भी अभी इंटरेस्ट आया है कि वो भी इस पर्टिकुलर ड्रग को रिसर्च और करें। अभी टर्की से भी इंटरेस्ट आया है कि वो भी करना चाहते हैं, अभी वो हो रहा है टर्की में। ऑस्लो की यूनिवर्सिटी में भी अभी रिसर्च हो रहा है, तो उसकी फाइंडिंग्स में भी हम आपसे क्या और थोड़ी दिनों में शेयर करेंगे। तो इंटरेस्ट तो बहुत है, आयुर्वेद के लिए अभी बहुत इंटरेस्ट है अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड श्री तत्व अभी तत्पर है कि वो शुद्धता का नाम सब जगह लेकर जाए। दवाई का नाम NOC19 है, और आज हम ये पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से उसको अप्रूवल मिला है एज ए सपोर्टिव ड्रग, एज एन एड ऑन थेरेपी फॉर माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 केसेस। और इसका एफिकेसी को लेकर हमने बहुत सारे कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं। हमारे जो एपेक्स इंस्टीट्यूट्स भी हैं, एम्स जोधपुर, जिनके इट इज़ अ वेरी एपेक्स इंस्टीट्यूट हियर इन इंडिया, तो उनसे भी हमने क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं। और उसके बाद ये रिगरस ट्रायल्स के बाद अभी क्या मंत्रालय ने हमें ये अप्रूवल दिया है, और ये हम पूरे देश और विदेश से हम ये शेयर आज करना चाहते हैं। अरविंद जी हमारे बीच में है। आज दवाई जो है उसको लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन सर जी हम ये जानना चाहते हैं कि ये दवाई इतनी लेट क्यों की? बहुत से लोग जो हैं कोविड-19 में ख़त्म हो गए सर जी। तो यदि आप देखें कि ये जो NOC19 है वो दूसरा मेडिसिन है कि जो श्री तत्व को अप्रूवल मिली है। पहली मेडिसिन जो है श्री तत्व की कवसरुकुटिनी, वो पहली वेव में ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका था, लेकिन जब आपने अभी बहुत सही बात बोली कि दूसरी वेव में बहुत सारे लोग क्या जा चुके थे और हमने उनको लूज़ किए हैं। तो जब सेकेंड वेव हो रहा था तो तब से ये श्री तत्व ये पर्टिकुलर ट्रायल्स को शुरू किया था, और जहाँ कि आप देखें कि ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स था बहुत ही रोबस्ट तौर पर हुआ था, और इसलिए जब भी आप देखें कि अभी इसका अप्रूवल भी आने के लिए बहुत सारे राउंड्स भी क्या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ और ITRC कमेटी के साथ हुआ था, जहाँ की हमारा पूरा टीम जो डॉक्टर रवि रेड्डी जी हमारे साथ हैं, तो उनकी पूरा टीम लगी हुई थी कि इसका अप्रूवल कैसे मिले। तो कहीं ना और कहीं ये बहुत गर्व की चीज़ है कि आज ये पर्टिकुलर क्या अप्रूवल आज मिली है, और ये प्रमाण है कि आयुर्वेद भी आज बहुत ही रेलेवेंट है, कि आज एक बहुत अच्छा दिन है जहाँ कि हम ये पर्टिकुलर अप्रूवल को हम अनाउंस कर रहे हैं, और इसका ये जो बेनिफिट है बाकी पूरी दुनिया और लोगों को ज़रूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच डॉक्टर रवि कुमार रेड्डी जी हैं, जिन्होंने जो है श्री के यहाँ एक दवाई इन्वेंशन की है, जिससे अभी जो कोविड के जितने भी पेशेंट होंगे उनकी मौतें नहीं होंगी, उनको बचाया जा सकेगा। तो सर जी कितनी कारगर सिद्ध होगी, और क्या इसमें ऐसी चीज़ बनाई है? क्योंकि बाबा रामदेव ने भी लॉन्च की थी, गवर्नमेंट की भी लॉन्च है, गवर्नमेंट ने अपना वैक्सीनेशन बनाया है, 2 वैक्सीनेशन के बाद पावर बूस्ट भी लिया गया है उसमें। तो अगर ये सब चीज़ें भी लेने पड़ेगी इस दवाई को खाने के बावजूद, या ये दवाई खाने से ही हम सही हो जाएंगे सर? आप दुनिया में देख के टेंशन तो कितना बीमारी है उतना दवाई है, दवाई उतना है और बीमारी उतना है। दवाई से बीमारी कम नहीं होता है, दवाई से कभी बीमारी कम नहीं होता है। बहुत अच्छी बात, क्योंकि ना ये तो कि हमारा दिनचर्या कैसा है, हम कैसा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उससे ही बीमारी बढ़ जाता है। तो वो बीमारी के लिए ऐसा हम नित्य उससे हम बचा सकते हैं अपने आप को, प्रतिदिन योग करके, प्रतिदिन जो दवाई लेके दवाई कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होगी जो आपने बनाई है। अभी इस दवाई से आपका ये है कि
आपका श्वास कोश का संबंधित व्याधि, कोरोना का, कोविड का तो एक छोटा सा भाग है कि ये श्वास कोश में लंग्स का इफेक्ट होता है। ऐसा ये दवाई से आपका श्वास से कोविड का वायरल, ऐसा किसी दूसरे वायरस से भी हो, बैक्टीरिया से हो, कुछ न्यूमोनिया हो, ऐसा संबंधी रेस्पिरेटरी संबंधी व्याधि को इसको ना लंग्स को आपको स्ट्रेंथन करते हैं। तो इसलिए आपको एक बार आपका लंग्स का स्ट्रेंथ होता है तो आपका बच सकते हैं। हाँ, आपका श्वास का क्रिया अच्छा रहते हैं तो आपका शरीर में बल बढ़ जाता है। तो उसी कारण से हमने इसका हमने आपको ये सोचना नहीं होगा कि हमने आयुर्वेद कभी भी आपका नुकसान देगा। स्वस्थ रखने के लिए कोशिश किया। बेकार का प्रसव करना दूसरी बात है, स्वस्थ रखने का प्रथम भाग है। अब आप ये दवा में देखेंगे जो चीज़ है कि तुलसी है, गिलोय है, हल्दी है, बेल है, तो ये सब का मिश्रण एंटीवायरल मिश्रण है। एंटीवायरल और प्रॉपर्टी ऐसा है कि इम्यूनिटी सिस्टम को सही रखेंगे। आप इम्यूनिटी सिस्टम सही रखेंगे, ये कोविड का भी हो सकता है, दूसरे का और भी बहुत से वायरल हैं वो घूम रहे हैं, हाँ, उनको भी खत्म किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।